Welcome back to my new video. So in this video we are going to discuss about the life cycle of HIV. In the last video we have discussed about the structure of HIV. So HIV means human immunodeficiency virus, and it causes the disease called AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So we know that HIV mostly infect करता है T cells को. HIV mostly infect T cells and macrophages. So it mostly infect the T cells and the macrophages. So आज हम पढ़ेंगे the life cycle of HIV. So the life cycle of HIV is consist of the 7 steps, which are: the first we have binding, fusion, reverse transcription, integration, replication, assembly, and budding. So the first step we have binding. So HIV binds to the host cell. HIV bind to the host cell. How it is binding? So we know that HIV have receptors. No, HIV contain the glycoprotein GP120 and GP41. These are the two glycoproteins of HIV, which are usually helping HIV to attach, to get connected with the host cell. And HIV के पास GP120 and GP41. These are the two glycoproteins which are जो head और transmembrane होती हैं. तो we know that GP120 act as a head. It contain receptor which usually help to bind with the host cell, and GP41 is a transmembrane protein which help in the fusion. So HIV के पास GP120 होता है, and the T cells and macrophages have receptors and co-receptor. तो टी सेल्स और मैक्रोफेजेस के बाद कुछ रिसेप्टर्स होते हैं एंड को रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर का नाम है CD4 एंड को रिसेप्टर्स होते हैं CCR5 एंड C/CR4. यहाँ पास दो को रिसेप्टर्स होते हैं और CD4 पास एक रिसेप्टर होता है at the surface of host cell. कहाँ होता है? at surface of host cell के सरफेस पे होता है CD4 रिसेप्टर, और को रिसेप्टर होते हैं CCR5 एंड C/CR4. ये दो को रिसेप्टर्स, एक रिसेप्टर होता है जो होते हैं मौजूद टी सेल्स और मैक्रोफेजेस के सरफेस पे. सो जब एक HIV आता है, here you can see, जब कोई HIV एक आ रहा है, एक HIV आया, these are the glycoproteins. जो हेड का पार्ट हो रहा है घोल, ये है GP120 एंड इसकी टेल जो है वो है GP41. सो GP120 आप देख रहे हैं हेड अटैच हो रहा है इनके साथ. दीज आर द रिसेप्टर. ये क्या है? रिसेप्टर है. CD4 रिसेप्टर है. ये क्या है? CD4 रिसेप्टर है जो अटैच करवा रहे हैं. तो अटैचमेंट में हमारे पास बाइंडिंग में क्या आता है? द हेड मीन्स द ग्लाइकोप्रोटीन GP120 allow the CD4 receptor to bind, या CD4 receptor allowed HIV's glycoprotein which is 1GP120 to bind with it. इसके ज़रिए HIV का हेड GP120 जो है और होस्ट सेल का CD4 रिसेप्टर दोनों अटैच होते हैं अलॉन्ग विथ द को रिसेप्टर. इनको अटैचमेंट में कुछ को रिसेप्टर भी मदद करते हैं. ओके,
नाउ आफ्टर द अटैचमेंट, ये हो गई अटैचमेंट। आफ्टर अटैचमेंट वी हैव द सेकेंड स्टेप कॉल्ड फ्यूजन। अब फ्यूजन कैसे होगी? द HIV वायरस फ्यूजेज विद द सेल मेम्ब्रेन, द HIV वायरस फ्यूजेज विद द सेल मेम्ब्रेन of the host cell, which allows HIV content including RNA, reverse transcriptase, integrase, and some proteins to enter the cell. These are the enzymes which are present in the HIV. तो फ्यूजन में क्या होता है? The cell membrane of HIV and cell membrane of host cell means T cells की फ्यूजन होती है। एंड दिस फ्यूजन किसके ज़रिए होती है? फ्यूजन जो है फ्यूजन होती है, फ्यूजन is done by GP41 and co-receptors। तो फ्यूजन में कौन हमें हेल्प करता है? GP41 जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। GP41 is a transmembrane protein which helps or which assists in the process of fusion of cell membrane of host and the cell membrane of or the envelope of virus। ओके, फ्यूजन किसके जरिए होती है? GP41 जो कि एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, और को रिसेप्टर्स CCR5 and C into CR4, दे आर टू को रिसेप्टर विच हेल्प इन द फ्यूजन। तो यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो डंडी बनी हुई है, दिस हेल्प्स इन द फ्यूजन, एंड दोनों फ्यूज कराते हैं द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट सेल विच एंड द HIV की सेल मेम्ब्रेन, दोनों फ्यूज होती हैं। और आफ्टर द फ्यूजन इट फॉर्म्स अ एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस के ज़रिए ये अंदर जाता है। बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इट गोज इनसाइड, इट इंटर द होस्ट सेल। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक बड टाइप बन जाता है, और बाय द बडिंग, मतलब बड टाइप होता है, बडिंग उसको नहीं कहेंगे, बट इसको कहेंगे हम अटैचमेंट पेनिट्रेशन, मतलब पेनिट्रेट हो रहा है इनटू द होस्ट सेल। व्हेन इट्स पेनिट्रेटेड इनटू द होस्ट सेल, जब वो पेनिट्रेट होगा तो द एंजाइम इन द RNA, the enzyme which is present in its genome which is protease, वो क्या करेगा? it will degrade the protein shell, the capsid and the matrix, उन सबको डिग्रेड कर देगा, ख़त्म कर देगा, एंड सिर्फ होस्ट सेल में क्या बचेगा? द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 आइडेंटिकल यूनिट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के, और क्या बचेगा? इंजाइम्स जो है इंटीग्रेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और प्रोटीज इंजाइम एक यहाँ पे हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डिग्रेड करता है प्रोटीन शेल को, पूरा प्रोटीन का जो शेल बना होता है HIV को, उसको डिग्रेड कर देता है, और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड RNA और इंजाइम C होस्ट सेल में इन होते हैं। तो फ्यूजन में क्या हुआ था कि को रिसेप्टर्स और GP41 जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये दोनों फ्यूज होते हैं विद हेल्प ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल, द मेम्ब्रेन ऑफ HIV, बोथ गेट फ्यूज बाय द हेल्प ऑफ GP41 एंड बाय द हेल्प ऑफ GP41 के ज़रिए, और को रिसेप्टर CCR5 एंड C into CR4 के ज़रिए फ्यूजन होती है, और फ्यूजन के ज़रिए वायरस अंदर इंटर कर देता है होस्ट सेल। आफ्टर द इंटरिंग ऑफ द होस्ट सेल, मैंने बताया कि प्रोटीज एंजाइम जो जीनोम के होता है वायरस के, वो डिग्रेड कर देता है उसके प्रोटीन शेल को। आफ्टर द डिग्रेडेशन सिर्फ हमारे पास क्या बचता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड एंजाइम्स बचते हैं। एंड द थर्ड स्टेप नाउ which comes is reverse transcription. Inside the cell, HIV RNA is converted into DNA using reverse transcriptase. ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। फर्स्टली क्या होता है? द HIV ओके, पहले क्या होता है? द थर्ड स्टेप में क्या होता है? द HIV जो HIV का
आरएनए होता है, द HIV का आरएनए होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, cDNA में। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA बाय द एंजाइम यूज्ड विच इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमारे पास दो आइडेंटिकल सब यूनिट थे आरएनए के जो इंटर हुए थे। आफ्टर द इंटर, वंस द एंट्री ऑफ वायरस हैज बीन डन, वो प्रोटीन एंजाइम उनको प्रोटीन उनके कैप्सिड को और शेल को डिग्रेड कर देता है और बचता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और एंजाइम्स बचते हैं। अब जो आरएनए आया HIV का, वो बाय द एंजाइम हेल्प इन द साइटोप्लाज्म में होता है ये सब प्रोसेस। बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के जरिए आरएनए कन्वर्ट हो जाता है cDNA में। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सपोज ये आरएनए और ये cDNA की इसकी एक स्ट्रैंड बन गई, इसकी एक स्ट्रैंड बन गई। एक ये आरएनए है और ये cDNA, और इनके जब वो बनता है, इनके जरिए इनके बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। ये दे बोथ गॉट अटैच्ड, तो बोथ गॉट अटैच्ड, और जब ये अटैच होते हैं तो इनको कहते हैं आरएनए 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 डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल, आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल। इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल। किसको कहते हैं, जब आरएनए HIV का जो आरएनए होता है वो कन्वर्ट हो जाता है cDNA बाय एंजाइम, cDNA में कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए की पॉलीमराइजेशन हो रही है, बन रहा है, और जब बनता है तो द आरएनए एंड cDNA के दौरान एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, न्यूक्लियोटाइड के जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब हो जाती है तो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल, आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। नाउ अब क्या होता है, द एच बी मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ब्रेक्ड बाय आरटीएस। आरटीएस मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। आरटीएस मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है आरएनए डीएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल की, ये दोनों टूटते हैं, इट ब्रेक्स डाउन इनटू आरएनए एंड डीएनए, ये टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक बाय आरटीएस मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए, एंजाइम यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। और अभी cDNA जो होता है, cDNA वो बनाता है अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, तो वो बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे, देखो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आया, ये डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री cDNA है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए आया, और इसने ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इसने इसने अपनी एक और स्ट्रैंड बना दी डीएनए की। ओके, इसने क्या क्या एक और स्ट्रैंड बना दी डीएनए की, इसने एक स्ट्रैंड बना दी डीएनए की। अब ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये क्या बन गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। ओके, ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कैसे बना, पहले आरएनए कन्वर्ट हुआ cDNA में, ये cDNA, और ये cDNA आ गया इधर, और ये हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। cDNA कन्वर्ट हो गया डबल स्ट्रैंड डीएनए में बाय यूजिंग एन एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के यहाँ पर 3 रोल हैं। फर्स्ट, आरएनए को cDNA में कन्वर्ट करना, आरएनए और डीएनए आरएनए हाइब्रिड मॉलिक्यूल को तोड़ना, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का भी काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का भी काम करता है। उसके पास ये एबिलिटी है टू वर्क एज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ऑल्सो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और ये ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है बाय बिटवीन द आरएनए एंड cDNA। इस तरह आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, इस तरह आरएनए कन्वर्ट हो जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। अभी जो आरएनए की ये टेम्पलेट है, जो आरएनए है, ये
it work as a template. It work as a template to form cDNA. RNA work or act as a template to form cDNA. And cDNA जो है, it also work as a template to form another strand of DNA. आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो टेम्पलेट के जैसे काम करता है टू फॉर्म cDNA. उससे cDNA बनता है, और जो cDNA बनता है, cDNA फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है. तो cDNA एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सो इन द एंड हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया. हमारे पास क्या आ गया? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया. डबल स्ट्रैंड डीएनए आ गया. अब आफ्टर द डबल स्ट्रैंड डीएनए जब बन जाता है, ये हो जाती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है थर्ड स्टेप. ओके, दिस इज द थर्ड स्टेप. नाउ फोर्थ स्टेप इज फोर्थ स्टेप हमारे क्या है? इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन मतलब एक जो डबल स्ट्रैंड डीएनए बनता है वो इंटीग्रेट होता है होस्ट सेल के साथ. इंटीग्रेट एंजाइम अलाउज एचआईवी डीएनए टू बी डी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए. अब क्या होगा? अब क्या होगा? नाउ तो फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है? इंटीग्रेशन. ओके, इंटीग्रेशन. अब जो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये होगा इंटीग्रेट. डबल स्टैंडर्ड डीएनए विल इंटीग्रेट इंटीग्रेट विथ होस्ट क्रोमोसोम. होस्ट chromosome and by transporting into the nucleus. कैसे होगी? जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो इंटीग्रेट करता है विथ होस्ट क्रोमोसोम बाय ट्रांसपोर्टिंग इनटू द न्यूक्लियस. एंड integration is done by enzyme used by enzyme called integrase. द फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन. द डबल स्ट्रैंड डीएनए जो बना था वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम में. ये जो ऊपर वाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज डन इन द साइटोप्लाज्म. वो कहाँ हुआ था? साइटोप्लाज्म में हुआ था. अब जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा न्यूक्लियस में, और बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड इंटीग्रेस के ज़रिए उसकी हेल्प लेके वो इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाएगा. और देयर इज़ नो स्पेसिफिसिटी के वो होस्ट क्रोमोसोम के कौन से नंबर पे अटैच हो रहा है. किसी भी रैंडमली पोजीशन पे अटैच होता है वो. इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर पे ये नहीं होता. ये नॉन स्पेसिफिक होता है. क्रोमोसोम के कहीं भी अटैच हो सकता है. तो ये क्रोमोसोम के होस्ट क्रोमोसोम पे के साथ जाके इंटीग्रेशन करता है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. नाउ लेट्स कम इन द पिक्चर. द फोर्थ स्टेप हमारा हो गया इंटीग्रेशन. इंटीग्रेस एंजाइम अलाउज एचआईवी डीएनए टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट डीएनए. डबल स्ट्रैंड डीएनए जो हमारा बना था एचआईवी का बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट हो गया. तो नाउ द फिफ्थ प्रोसेस इंक्लूड रेप्लिकेशन. HIV can now produce long chains of HIV proteins which can be used to build more HIV. Now after the integration, the one more thing in the integration process के the integrated DNA, जब DNA integrate होगा, integrated DNA is called प्रोवायरस. वो जब होस्ट क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा तो वो कहलाता है प्रोवायरस या प्रोफेज और प्रोवायरस. व्हेन डीएनए इज इंटीग्रेटेड, द इंटीग्रेटेड डीएनए इज कॉल्ड प्रोवायरस या प्रोफेज. नाउ द थर्ड स्टेप कम्स रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन. इसको इन सम बुक्स रिटन ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन, ये ट्रांसक्रिप्शन एंड एप्लीकेशन. सो नाउ द इंटीग्रेटेड डीएनए, जो इंटीग्रेट हुआ इंटीग्रेटेड डीएनए विल फॉर्म mRNA. वो क्या बनाएंगे? mRNA बना रहे बाय यूजिंग एंजाइम called RNA polymerase. And this enzyme is of host. Okay, now after the process of integration, integrated जो DNA होगा वो mRNA बनाएगा by using the host enzyme called RNA polymerase. means DNA dependent RNA polymerase enzyme यूज करेगा of the host enzyme को यूज करके वो mRNA बनाता है. इंटीग्रेटेड जो DNA है वो mRNA बनाता है. It forms the mRNA by using enzyme called RNA polymerase and this enzyme is of host. मतलब host का RNA polymerase enzyme होगा जो वो यूज करेगा to convert to form DNA to form mRNA into from DNA. mRNA बनाता है DNA से, मतलब DNA कन्वर्ट हो जाएगा mRNA में. एंजाइम कॉल्ड DNA डिपेंडेंट RNA polymerase. ओके, अब जो mRNA है, mRNA will form the mRNA will go under translation process and make protein parts of make viral proteins. पार्ट्स. ओके, अब क्या होगा? जो mRNA बना था DNA से बाय यूजिंग एंजाइम RNA पॉलीमरेज, द mRNA विल गो अंडर ट्रांसलेशन. mRNA में होगी ट्रांसलेशन. बाय द रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन वो बनाएगा वायरल प्रोटीन्स के पार्ट. वो क्या बनाएगा? ट्रांसलेशन में पता है, बाय इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन mRNA कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में. सो दिस mRNA विल गो अंडर ट्रांसलेशन एंड मेक वायरल प्रोटीन पार्ट्स. वो प्रोटीन के पार्ट बनाएगा. इट will form it will also form its genome. Which is RNA. Okay, अब इन द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन जो इंटीग्रेटेड डीएनए वो mRNA में कन्वर्ट हो जाता है और mRNA विल गो अंडर ट्रांसलेशन एंड मेक वायरल प्रोटीन पार्ट्स. और ये mRNA प्रोटीन के पार्ट बनाता है. इट विल ऑल्सो फॉर्म इट्स जीनोम विच इज RNA. वो अपना जीनोम भी बनाएगा. इट फॉर्म्स लार्ज प्रोटीन्स. वो बनाता है mRNA ट्रांसलेशन के प्रोसेस में लार्ज प्रोटीन के पार्ट बनाते हैं. लार्ज प्रोटीन पार्ट्स एंड mRNA कोड polyproteins and enzymes. Now in the process of replication and transcription, replication या ट्रांसक्रिप्शन में हमने पता है कि DNA कन्वर्ट हो जाता है mRNA में. mRNA विल गो अंडर ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जाता है. ट्रांसलेशन करता है, वो वायरल प्रोटीन के पार्ट्स बनाता है, वो प्रोटीन बनाता है. वो प्रोटीन के साथ अपना जीनोम भी बनाता है विच इज़ RNA. और इट फॉर्म्स लार्जर प्रोटीन पार्ट्स मतलब पॉलीप्रोटीन्स. mRNA कोड पॉलीप्रोटीन्स एंड एंजाइम. वो अपने एंजाइम्स भी बनाता है विच आर रिक्वायर्ड टू मेक द कॉपीज द प्रोजीनीज ऑफ HIV. तो अपने वायरस के अपने प्रोटीन्स के पार्ट बनाता है, लार्जर प्रोटीन पार्ट्स. एंड mRNA
कोड पॉलीप्रोटीन जो हो, इसका मतलब भी लार्जर प्रोटीन से एंड एंजाइम्स. सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें वो mRNA डीएनए से mRNA बनता है और mRNA ट्रांसलेशन के अंदर अंडर प्रोसेस में जाता है, जो अपने प्रोटीन्स बनाता है. जो प्रोटीन बनाता है वो प्रोटीन से अपने स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है. इट कोड द पोलीप्रोटीन विच आर लार्जर प्रोटीन पार्ट्स बनाता है और अपना जीनोम भी बनाता है. So the next step we have assembly. HIV proteins and mRNA move to a surface to of cell and are assembled into an immature HIV. Okay. अब क्या होगा? Okay. Now the sixth step we have assembly. Now the polyproteins या हम इधर लिखते हैं larger protein parts are breaked by enzyme protease enzyme and convert into smaller proteins. Now the smaller proteins will be assembled in a structure of HIV. In the assembly, the larger protein parts are baked by enzyme called protease. जो large protein, जो polyproteins बने थे, वो टूटेंगे enzyme called protease के, टूटेंगे और convert हो जाएंगे into smaller protein. Now the smaller protein will be assembled. वो assembled हो जाएंगे in a structure of HIV. वो HIV के structure में assemble हो जाएंगे. Now by assembly of structural parts, the immature HIV is formed. Okay, in the result of the assembly, तो larger protein part वो break हो जाते हैं smaller proteins में by the help of enzyme protease. Now the smaller protein will be assembled in a structure of HIV. By the assembly of structural parts, immature HIV is formed, and the genome and enzymes are enclosed in a protein shell. In a process of assembly, after the assembly, smaller protein part will be assembled in the structure of HIV. अब by the assembly of structure part, immature HIV जो बनेंगे उनका जीनोम एंड एंजाइम जो होंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन में उसने अपने एंजाइम भी बनाए थे. इट फॉर्म्स लार्जर प्रोटीन पार्ट्स एंड mRNA कोड पॉलीप्रोटीन एंड एंजाइम. तो एंजाइम्स और जो जीनोम बना था, दे विल बी इंक्लोज्ड इन अ प्रोटीन शेल. और नाउ the immature HIV is formed. Now, in this process हमारे पास in the end of this process हमारे पास immature HIV बन गया है in the host cell. Now the last process which we have is budding. So now the immature HIV
will borrow the membrane of host cell and cover, or we can say enclose themselves by envelope. Now the immature HIV will borrow the membrane of host cell. वो membrane जो host cell की होगी वो borrow करेंगे to enclose themselves by envelope. वो enclose हो जाएंगे envelope में, and by this borrowing of cell membrane, जो सेल मेम्ब्रेन बोरो होती है, a bud is formed or then this bud is exit by exocytosis. In the process में क्या होता है, जो मेकिंग सपोज ये सेल है और ये एंजाइम बन गए हैं, these are the enzymes. Now ये जो immature HIV बने हैं, now they will take, now ये अब ये सेल में now this process, इसको हम कहते हैं बडिंग. इसको हम क्या कहते हैं, बडिंग. एक बड बन गया है और ये एग्जिट आउट हो जाएंगे ऐसे बाय एक्सोसाइटोसिस. सो बडिंग में क्या होता है, तो इमेच्योर जो HIV बना है ये बोरो करता है मेम्ब्रेन. इसने बोरो की मेम्ब्रेन को एनवेलप मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट मेम्ब्रेन को बोरो करता है और अपने आप को एनवेलप में बंद कर देता है. बाय दिस बोरोइंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बड इज फॉर्म्ड. ये बड बन जाता है, ऐसे बड बन जाता है और ये बड एग्जिट हो जाता है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से. सो दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, क्योंकि इसमें आफ्टर द बोरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन एक बड बन जाता है इन द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. जो ये बड बना है ऐसे बड बन जाते हैं सेल मेम्ब्रेन, और बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस दे आर एग्जिटेड आउट. नाउ लेट्स चेक इन द डायग्राम. Now, budding, immature HIV is pushed out of the cell and protease activate immature into mature infectious HIV. Okay, जब ये बडिंग होती है, जब वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन को बोरो करते हैं, तो ये प्रोटीज एक्टिवेट इमेच्योर इनटू मैच्योर. जो प्रोटीन एंजाइम होता है ये इमेच्योर को मैच्योर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इमेच्योर जो होते हैं उनको मैच्योर कर देता है. They convert into mature, and these exited out HIV जो होंगे, these are the mostly or infectious virion. These are called infectious virion. जब HIV रिलीज हो जाएंगे तो which is complete, these released HIV are complete infectious virion, and in the end of the when after the budding, after the released out when they are released out from the cell, so now HIV infect the other lymphocytes and pass with the same situation. ये दूसरे lymphocytes को अटैक करेंगे, दूसरे lymphocytes को इन्फेक्ट करेंगे और सेम सिचुएशन के जरिए जाते रहेंगे. In the end process, budding immature is pushed out of the cell and protease activate the immature into mature HIV. अगर हम इसके डायग्राम के ज़रिए समझें तो ये पहले इंसर्ट हुआ और ये जो हुआ ये DNA सिर्फ ये देखें, ये शो कर रहा है कि दिस इज डिग्रेडेड, उसका प्रोटीन शेल डिग्रेड हो जाता है और ये सिर्फ
सेकेंड पार्ट में फ्यूजन हो जाती है। आफ्टर द फ्यूजन थर्ड पार्ट आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये आरएनए है और इसने ये बनाया cDNA, ये बनाया इसने cDNA, और ये cDNA फर्दर कन्वर्ट हो गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अब ये जो डबल स्ट्रैंड हमारा डीएनए बना है ये जाएगा न्यूक्लियस में और ये इंटीग्रेट हो गया, ये इंटीग्रेट हो गया नहीं, अब ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है ये इंटीग्रेट हुआ बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट हो गया with the nucleus, with the chromosome of the host cell. The fourth process we have integration. After the integration replication हुई, न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन हुई और इसने अपनी कॉपीज़ बनाना शुरू की। मतलब इसमें न्यूक्लियस में डीएनए कन्वर्ट हो गया एमआरएनए में, एमआरएनए ने अपने प्रोटीन्स ट्रांसलेशन के अंदर प्रोटीन्स बनाई, प्रोटीन स्ट्रक्चर पार्ट जो प्रोटीन बनी उसने लार्ज एमआरएनए फॉर्म और कोड द पॉलीप्रोटीन एंड एंजाइम्स, जो लार्जर प्रोटीन पार्ट बने थे उनको तोड़ा किसने, प्रोटीज ने, इन द फोर्थ सिक्स्थ स्टेप विच इज असेंबली। और तोड़ने से स्मॉल प्रोटीन पार्ट वो असेंबल हुए, वो जमा हुए और एक एचआईवी का स्ट्रक्चर बना जिसको हम बोल रहे थे इमेच्योर एचआईवी, और उसका जो जीनोम और एंजाइम थे वो इनक्लोज्ड बाय कैप्सिड, उसी में कैप्सिड में वो थे। अब द फाइव स्टेप वी हैव रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन हो रही है। इन द सिक्स स्टेप दीज आर टेकिंग द मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन ले रहे हैं ये देखिए ये असेंबल हो रहे हैं, ये असेंबल हो रहे हैं इन स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ असेंबली एंड आफ्टर द असेंबली ये बडिंग हो गई, ये असेंबली हो रही है और ये बडिंग हो गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी, लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी।